Hello everyone, myself Uttam Rai, your host come those jada. So today we have with us Ayush boss. Hello boss. Hello, Uttam. Hello. Boss, can you share a bit about yourself with our viewers? Yeah, sure. I'm Ayush Kumar. I'm a 2025 graduate. I completed my graduation from MNIT Jaipur in Electronics and Communication Engineering. Right now, I'm working as a software developer at Deutsche Bank. Throughout my 4 years of college, I had a lot of experience. I did not join any specific clubs, but sure, there was a lot to talk about in this podcast. I have worked on several technologies like React, Python, AIML, and I also did my internship at a startup called Desire Energy Solutions in my third year. Yep, that's all about it. Okay. So boss, you mentioned about some startup. So can you Yes, please explain something more about? yes. The startup was basically they focused on conserving energy, and what my role involves, I basically worked as an external consultant at that startup. Okay. So basically, my role was to provide them with information, and based on that information, they would make decisions on where to invest, on what kind of technology to use in their project. For example, what the project that my company got was from the government, and it was around a 20 crore project. And Okay. what that project involved was basically applying water meters in a specific city of Maharashtra. ओके सो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट कॉलेज बेस्ड था या फिर मतलब आपने कहीं एक्सटर्नल अप्लाई किया था इसके लिए? The thing was basically one company came to our college. It was named Dhanai. हम्म, So I worked as like I got selected as a data analyst over for that company. But that company was a client-based company, and one of the clients was this company called Desire Energy Solutions. So basically, I worked for the client. Indirectly, I got placed through college, but I was working for the client the whole time. Okay, so boss, my next question is like you have spent almost 4 years at MNIT Jaipur. So आपका experience कैसा था college life, outside the college life? Like I would say college life 4 साल बहुत ही प्यारी निकली है. हम्म, It would definitely one of the best experiences in my life. ठीक है, ups and downs रहते हैं, emotional, physical बहुत सारे. मैं शॉर्ट में बोलूंगा, देख फर्स्ट ईयर तो लोगों को जानने में निकल जाता है पूरा. इट्स लाइक फॉर्मिंग बॉन्ड्स एंड ऑल. स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि you're into this new place, new people. You're staying at hostel 24/7 with all these people. But the thing is, the bond you form with these people in the first year, they will remain for the next 4 years of your life. And it's pretty important कि तुम किनके साथ bonding कर रहे हो. So fortunately, the people I found in my first year, they were really good. मतलब I can say कि I can connect to them even now. I can call any of them right now, and they will help me in whatever situation I am. तो फर्स्ट ईयर तो ठीक है, मजे करने में निकल गया. पढ़ाई बीच बीच में ओके, इतना पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लिया, जितना पढ़ाई कर रहे थे उतना हुआ. सेकेंड ईयर ओके, थोड़ा समझ में आया कि ओके पीपल आर डूइंग कोडिंग अराउंड मी, सो आई नीड टू डू ओके. लाइक देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज डूइंग कोड शेफ इन क्लास, एंड आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग कि क्या होता है कैसे होता है. सो आई आस्क्ड हिम कि सेकेंड भाई ईयर ये तक. क्या. यस, मैंने क्या है कोडिंग, तो ही इंट्रोड्यूस मी कि ओके कोड शेफ होता है, लीड कोड होता है. And then in second year I took my first coding ninjas course and got into coding. तो सेकेंड ईयर के अंदर मैंने अपना वेब डेवलपमेंट डीएसए स्टार्ट किया. तो सेकेंड ईयर वाज अ बिट ऑफ मोर आई वुड से स्टूडियस फॉर मी कि मैंने मजे किए, बट आई वाज मोर ऑन द एक्सप्लोरिंग साइड इन टेक्नोलॉजी. Exploring in technology science. यस, वेब डेवलपमेंट. मैं स्टार्टिंग में वही एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट फिर रिएक्ट, तो स्टार्टिंग मैंने सेकेंड ईयर थोड़ा एक्सप्लोर करने में निकाला इन टर्म्स ऑफ स्टडीज. एंड थर्ड ईयर वाज प्रोबेबली द मोस्ट स्ट्रेसफुल कि उस टाइम बहुत ही प्रेशर था ऑफ इंटर्नशिप्स एंड कोर सब्जेक्ट्स. आई गेस बहुत टफ हो जाता है हमारी इसी के अंदर एट दैट टाइम. तो उस टाइम पूरा थर्ड ईयर वाज ठीक है, मजे बहुत किए दोस्तों के साथ. एंड दैट इज द पॉइंट कि तुम्हारे जो फर्स्ट ईयर में दोस्त बने, अब वो तुमको सेकंड थर्ड ईयर में सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई दिमाग खराब चल रहा है एग्जाम टाइम पे, या फिर स्ट्रेस है तुम रात को निकल जा रहे हो कहीं पे भी. तो थर्ड ईयर वाज इंटर्नशिप्स मजे. एंड फिर ठीक है, यू हैव टू डिसाइड कि ओके लास्ट 2 कॉलेज ऑफ योर लाइफ यू हैव टू डू समथिंग. ऐसा नहीं है कि तुम अनएम्प्लॉयड निकल रहे हो कॉलेज से. तो इट वाज ओके, आई डिड नॉट ग्रैब एन इंटर्नशिप
until the last of like end of third year. So Okay. थर्ड ईयर बहुत स्ट्रेसफुल रहा वैसे, थिंकिंग के आसपास सब लोगों की इंटर्नशिप लग रही है एंड आई एम हियर सिटिंग अलोन नहीं लग रही. सो इट वाज काइंड ऑफ अ स्ट्रेसफुल टाइम, बट देन ऑब्वियसली कि अब स्ट्रेस लेने से कोई फायदा तो है नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड. तो थर्ड ईयर अपने पूरे स्किल्स पे काम किया एंड इन द फोर्थ ईयर स्टार्टिंग में आई गॉट माय प्लेसमेंट इन डॉइचे बैंक. हम्म. एंड फिर फोर्थ ईयर तो पूरा मजे में निकला, दोस्तों के एक साथ बार बाहर घूमना, ट्रिप, बस. एक बार प्लेसमेंट होने के बाद में. बस यही तो फायदा है, एक बार जल्दी प्लेसमेंट ले लो उसके बाद मजे करो, तो बाकी. Okay, so boss, you didn't get any internship opportunity in third year. यस. Okay, so like उस टाइम पे माहौल कैसा हो जाता है कि आपके दोस्तों की लग रही है और आपकी नहीं, तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है. हाँ, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग यार, क्योंकि हम्म. you सबने एफर्ट मारे हैं हम्म. एंड कॉलेज प्लेसमेंट इज नॉट टोटली अबाउट हार्ड वर्क. जैसे यू विल आल्सो सी एंड द पीपल हु आर इन कॉलेज दे विल ऑल सी कि कॉलेज प्लेसमेंट्स हैव अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन इट, कि ठीक है एक लक फैक्टर रहता है, टाइमिंग फैक्टर रहता है कि तुम्हारा हम्म. इंटरव्यू किस टाइम पे हो रहा है, इंटरव्यूअर हम्म. कौन है, बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं. हम्म. एंड टू सी पीपल हु हैव क्या बोले हैं कि हु आर लेस प्रिपेयर्ड देन यू और हु हैव लेस स्किल्स देन यू गेट हम्म. प्लेस्ड, इट्स नॉट बैड कि ठीक है एवरीवन वांट्स अ जॉब, बट Okay. फॉर मी इट फेल्ट कि भाई मेरे हार्डवर्क की वैल्यू नहीं है. Okay. तो दैट वाज बिट डिसहार्टनिंग कि देख जो बंदा मेहनत कर रहा है उसकी लग हम्म. रही है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम क्योंकि उसकी हार्डवर्क का वैल्यू मिल रहा है उसको. बट Definitely. बट टू सी सम पीपल हु वर लाइक नॉट दैट गुड इवन दे गॉट प्लेस्ड, इट वाज लाइक कि मेरे में क्या कमी है. Okay, so boss, आपको कैसे पता चला कि ये मेरे वीक एरियाज है, and how did you work on them? देख वीक एरियाज तो यार, वीक एरियाज इज समथिंग यू कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल बाय योरसेल्फ. Okay. तेरे को हमेशा कोई चाहिए रहेगा साथ में हु कैन टेल यू कि उत्तम यू आर वीक इन दिस स्पेसिफिक एरिया, या फिर तेरा ये एरिया वीक है, हम्म. क्योंकि तेरे को लगेगा कि मैं तो सब कर ले रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड इन एवरीथिंग. हम्म. तो फॉर मी इट वाज माय फ्रेंड्स ऑल अलोंग कि भाई दे टोल्ड मी कि यार आयुष तेरा ये वाला पार्ट वीक है. जैसे मेरा कम्युनिकेशन वीक था, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि मैं तेज बोलता हूँ थोड़ा, हम्म. एंड जब मैं नर्वस होता हूँ तो वो स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है. हम्म. तो दिस वाज द थिंग दैट वाज स्टॉपिंग मी इन इंटरव्यूज, क्योंकि सामने वाला इंसान समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. एंड राइटिंग कोड इज वन पार्ट एंड बट एक्सप्लेनिंग कोड इज अ डिफरेंट पार्ट. Okay. एंड जब तुम लोग कंपनी में भी आओगे ना, इट डज हम्म. नॉट मैटर तुम कितना अच्छा कोड लिख रहे हो, इट हम्म. मैटर्स कि तुम उस कोड को कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो. Okay. क्योंकि वो कोड तुमने लिखा बट दैट Yes, कोड विल boss. गो टू अ डिफरेंट पर्सन Okay. एंड यू हैव टू कमेंट, लाइक यू हैव टू राइट कमेंट्स इन द कोड, ना कि ऐसे हम्म. कमेंट लिखो कि दूसरा बंदा समझ पाए कि तुमने क्या कोड लिखा है. ओके, तो मतलब ये तो वही चीज़ हो गई कि एक अच्छा टीचर एक टॉपर से ज़्यादा बेटर होता है. एग्जैक्टली. ओके. तो दैट वाज द मेरा कम्युनिकेशन एक वीक पार्ट था, तो माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि तेरा कम्युनिकेशन वीक पार्ट है, यू नीड टू फोकस ऑन इट. हम्म. सो आई टुक मॉक इंटरव्यूज, मैंने अपने पापा से स्क्रिप्ट बनवाई, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन. ओके. एंड फिर मेरी एक दूसरी वीकनेस थी कि आई यूज्ड टू स्पीक अ लॉट लेस हम्म. व्हेन आई शुड हैव स्पोकन अ लॉट मोर. हम्म. Because कि sometimes जैसे I still remember there was this Wells Fargo interview of mine, second round था, ओके. हम्म. and the interviewer asked me, okay, हम्म. you have worked on React.js. Now हम्म. tell me what is React.js. I ओके. just gave him a one-liner definition कि okay, React.js is a library, JavaScript library that is used in front end and this. I just gave him a one-liner definition. हम्म. If I wanted, I could have spoke about it for 10 minutes. ओके. But at that point, I don't know why, मैंने बस one liner definition चुनी. हम्म. And I believe that is the point which cost me that interview. ओके, तो वो जैसे कोई इंटरव्यू में आपने बोला कि एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके ऊपर ज़्यादा ब्रीफ भी आंसर नहीं करना था और ज़्यादा डीपली भी आंसर नहीं करना था, आपका ये मतलब है? नहीं, I believe ना कि ओके. अगर इंटरव्यू ने देखो कोई क्वेश्चन पूछा, हम्म. एक इंटरव्यू के अंदर तेरे पास लिमिटेड टाइम रहता है, हम्म. आधा घंटा 1 घंटा, एंड तेरा डेफिनेटली. मेन एम होता है कि उस इंटरव्यू के अंदर अपनी मैक्सिमम नॉलेज तेरे को शो करनी है इंटरव्यूअर को. तो ओके. डेफिनेटली तो तू कम बोल के तो वो नॉलेज शो नहीं कर पाएगा अपने सामने वाले इंसान को. हम्म. यू हैव टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि तू ज्यादा बोल एज कम्पेयर टू हम्म. कम बोल. ओके, सो बेसिकली आपका मतलब यही है कि
कि कितना आपने मेहनत करी है, क्या कुछ किया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे आप कितना ज़्यादा शो कर पाते हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और इसी की वजह से सिलेक्शन और रिजेक्शन का यही डिफरेंस रहता है मेनली। अरे बात एक, ये तेरी बात तो सही है, बट द थिंग इज कि सम पीपल हैव दिस एबिलिटी टू पोर्ट्रे। मान ले बंदे ने पढ़ा, एक दिन का माल है, मतलब एक दिन का उसने सेटअप पढ़ा है, बट ही कैन, उसने इतना अच्छा समझ लिया है कि ही कैन टॉक अबाउट इट फॉर 10 days। ओके। तो यही यही यहीं पे कम्युनिकेशन काम आता है कि सम पीपल हैव दिस एबिलिटी टू टॉक थिंग्स इन सच अ लाइक गुड वे कि सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाता है। पढ़ा दोनों ने सेम है, या फिर मान ली दूसरे वाले ने कम पढ़ा है, बट दूसरा वाला बोर्ड इतने अच्छे से रहा है कि इंटरव्यू को लगता है कि इसको नॉलेज बहुत है। Okay. So, boss, how can we improve our communication skills like this? देख, कम्युनिकेशन हैव अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। Okay. जैसे आई आइडेंटिफाइड कि मेरी स्पीड इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। अब किसी के लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी कि भाई उसके ही कैन नॉट फॉर्म द वर्ड्स, क्या बोलना है उसको। किसी के लिए प्रॉब्लम होगी, उसके दिमाग में समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, ब्लैंक हो जा रहा है वो। तो कम्युनिकेशन के कौन से स्टेप पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि कहाँ पे प्रॉब्लम है तुम्हारा कम्युनिकेशन में। अब मैंने समझा कि मेरा स्पीड है, तो आई हैव टू रिलैक्स माई सेल्फ डाउन, कि मेरे को जानबूझ के धीरे बोलना पड़ेगा। अब मान ले किसी का ऐसा है कि दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है, तो ही शुड फोकस ऑन ब्रीदिंग, या फिर खुद को, उसको वो क्या इतना स्ट्रेस ले रहा है कि उसका दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है। कोई तो स्ट्रेस ले रहा है बहुत ज्यादा वो, Definitely. तो ही हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस, फिर उसको खुद को काम डाउन करना पड़ेगा। अब किसी का लैंग्वेज बैरियर है, तो उसको लैंग्वेज पे वर्क करना पड़ेगा, इंग्लिश मूवीज देखे, इंग्लिश सीखे। तो हर बंदे को पहले तो आइडेंटिफाई करे व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड देन ट्राई टू फिक्स दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। बेसिकली आपका मतलब यही है कि एक सिंगल रूम में बैठ के तुम नहीं कर सकते। अगर आप नहीं, लोगों से मिलोगे, दोस्तों के साथ, वो बताएंगे आपको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की नीड है आपको। डेफिनेटली डेफिनेटली। फ्रेंड सर्कल। ओके। सो लाइक यू गॉट एन इंटर्न, यू गॉट प्लेस्ड एट ड्यूशे बैंक। सो आपका वो फर्स्ट, आपने जैसे बताया कि आपने वेल्स फार्गो के लिए भी इंटरव्यू दिया था, तो और कोई कंपनीज थी जिनके भी आपने इंटरव्यू दिए? इंटरव्यूज तो मैंने बहुत कंपनीज के दिए थे, इट वाज अराउंड 7 to 8 कंपनीज। आई आल्सो सैट फॉर Siemens EDA, आई आल्सो सैट फॉर Amazon interviews, and in my third year there was, I don't remember, in fourth year I sat for Siemens EDA, in third year and I sat for Amazon, and I don't even remember all the companies which I said. Like it was around 6 to 7 interviews I remember in total. One of them was Wells Fargo. uh, so what was the question? I forgot, क्या question था तेरा? बस मेरा ये क्वेश्चन है कि उनका कुछ, आपको कुछ फनी या फिर कोई ट्रिकीस्ट क्वेश्चन याद आया हो कुछ इस तरह से? Yes, trickiest question. The thing was in मेरे Deutsche Bank के interview के अंदर ही, मतलब there was this thing called like how to swap two numbers in how to swap two numbers of two variables without using a third variable. विदाउट यूजिंग अ थर्ड Third वेरिएबल। variable. This is a, I would say, a simple question, but the thing was कि मैं ऐसा था ना, एक दिन पहले when I was preparing for that interview, मैंने GFG के ऊपर सारे के सारे DB के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा था, एंड ये सेम क्वेश्चन मैंने देखा था कि हाउ टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। बट एट दैट पॉइंट आई थॉट कि ठीक है, पढ़ लूंगा इसको भाई, क्या फर्क पड़ता है। एंड इवन माई फ्रेंड टोल्ड कि भाई पढ़ लियो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकते हैं कल। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। बट अगले दिन इंटरव्यूअर ने सेम सवाल पूछ दिया मेरे से, ठीक है। एंड वो बिल्कुल इंटरव्यू के एंड पे था, एंड ही वाज सेइंग कि आयुष तुमने इतने पूरा इंटरव्यू इतने अच्छे से दिया है कि ये तो बहुत छोटा सवाल है, तुम कर ही दोगे। अच्छा, आगे से बोल रहे थे वो? आगे से बोल रहा हूँ, मेरी मेरी हैसियत है कि यार अगर ये नहीं किया तो मैं तो गया भाई, खत्म ठीक मेरा। है। फिर मैं लिटरल ना, जिसने क्वेश्चन दिया, मैं बैठ के हाँ। रिग्रेट कर रहा था कि यार क्या क्या करूं भाई। बट फिर ना मेरे को मिडवे हिट किया कि भाई दिस कुड बी द पॉइंट कि मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ या एक्सेप्ट हो रहा हूँ। कि मैंने कहा आई डोंट, इट डजंट मैटर कि मेरा पूरा इंटरव्यू अच्छा गया है, अगर मैंने इस पॉइंट पे अगर कर दिया, मैंने फकअप कर दिया, तो इट वुड बी लाइक खत्म। तो आई थॉट कि मेरे को करना तो पड़ेगा, तो आई जस्ट अप्लाइड कि मैं क्या करूँ। देन आई एडेड द, फिर मैंने दो वेरिएबल थे, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, एंड आई गॉट द आंसर। आई वाज लाइक हो गया भाई। फिर मैंने दिखाया उसको, एंड ही वाज लाइक मेरे को तो पता था तुम कर लोगे। मैंने कहा सर मेरे को नहीं पता था मैं कर लूंगा।
उस टाइम पे फिर रिएक्शन भी मैटर करता है ना कि आपके चेहरे के रिएक्शंस कैसे हैं पूरे वो एग्जैक्टली वही। इंटरव्यू। वो जैसे कंपनी का जो इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन बैठा रहता है या फिर बहुत सारे रहते हैं? यार इट कैन टोटली बी अप टू द कंपनी। देख ओके। मोस्टली कंपनीज का एक ही होता है, हम्म। मोस्टली कंपनीज का। हम्म। बट अगर ऐसा है कि कुछ अगर आई वुड से स्टार्टअप्स होते हैं हम्म। तो वो लोग दो या तीन लोग ले आते होते हैं। ओके। बट इट्स द नॉर्म टू एक नॉर्मल ही रहता है कि एक बंदा ही आता होता है। ओके, नॉर्मली मतलब एक ही पर्सन रहता है। यप। ओके, सो वो रिसेंटली यू एंटर इन दी प्रोफेशनल लाइफ, सो वहाँ पे आपका डेली रूटीन कैसा रहता है वर्किंग एट ड्यूशे बैंक? यस, देख हमारा रूटीन तो ये रहता है कि आई वेक अप एट 8 AM, हम्म। डू माई ब्रेकफास्ट मॉर्निंग रूटीन, हम्म। एंड देन आई पिक माई कैब एट 9 AM, हम्म। एंड देन आई रीच माई ऑफिस बाय 9:30 AM। ओके। फिर वहां पे उठ के यू ओपन द लैपटॉप, रीड ऑल हम्म। द मेल्स, कि मान लो कोई मेल तुम्हारे लिए आया है, हम्म। एंड आफ्टर दैट यू चेक कि ठीक है आज दिन में क्या क्या करना है तुमको, what tasks do you have, and then what we do is basically talk. I have a word with my manager if हम्म। this is my progress for yesterday, हम्म। and this is what I'll be working on today. हम्म। And the thing is you just start working on whatever stuff you have, हम्म। काम करते रहो till lunch हो जाए, 1 o'clock is lunch, 1 घंटा लंच करो 2 बजे तक, वापस आओ दोबारा काम पे बैठ जाओ। ओके। एंड द थिंग इज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, मेरे को लोगों से बात करना पसंद है rather than, ठीक है काम तो करना ही है, बट मेरे को लोगों से बात करना ज्यादा पसंद है। एंड करेंटली मैं एक बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में हूँ, तो मेरे को नॉलेज नहीं है क्या सब चीजों की, मैं स्टार्टिंग स्टेज के अंदर हूँ। तो मैं लोगों के अपने टीममेट्स के पास जाके उनका मैं बोलता हूँ सर कैन आई टेक योर 10 मिनट्स, और मैम कैन आई टेक योर 10 मिनट्स। तो मैं उनके पास बैठ के बस पूछता हूँ कि मैम आप किस पे काम कर रहे हो, हम्म। आप समझा दो मेरे को एक किस पे काम कर रहे हो। तो आई जस्ट ट्राई टू टेक नॉलेज फ्रॉम ऑल द पीपल इन वट एवर हम्म। फॉर्म आई कैन गेट, हम्म। क्योंकि मेरे को पता है मेरे को आगे से आके कोई नहीं पढ़ाने वाला है यहाँ पे। मेरे को खुद डेफिनेटली। ही लोगों के पास जाके उनसे पूछना पड़ेगा कि सर मेरे को ये समझा दो, मेरे को ये बता दो। तो मेरा दिन ये में कॉर्पोरेट में ये रहता है कि खुद का काम करो एंड फिर बाकी लोगों के पास जाके उनसे सीखो क्या वो काम करते हैं। ओके। फिर हाँ, तो वही वहाँ फिर पे शाम। मतलब कंटिन्यूअसली सीखने का तो वो रहता ही है, ये नहीं देख कि यार तुम्हें अब रिस्क कर दो। ये देख तेरे खुद के ऊपर है, ओके। ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा सब कर रहे हैं, इट्स हम्म। टोटली अप टू द पर्सन। हम्म। जिसको बैठना है वो बैठ के फ्री भी बैठ सकता है वहाँ पे। हम्म। कॉर्पोरेट के अंदर ऐसा रहता है कि कंपनी टू कंपनी डिफर रहता है कि कितना प्रेशर रहता है कंपनी के ऊपर ना टू डिलीवर। हम्म। ठीक है, अब मान ले क्लाइंट ने मांगा है कि हमको ये चीज चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर, हम्म। तो अगर तुम्हारी डिपेंडेंसी उस प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल एक कोई हम्म। प्रोजेक्ट ए है उस पर मेरी हम्म। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है कि आयुष के बिना तो वो प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाएगा, ओके। तो मेरे को उस प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, ओवर टाइम देना पड़ेगा मेरे को उस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साल के एंड पे प्रोजेक्ट देना है मेरे को। हम्म। एंड अगर वो प्रोजेक्ट नहीं दिया तो मेरी रेपुटेशन, मेरा अप्रेजल, मेरा पूरा करियर इफेक्ट होगा उस चीज से। और मान ले कोई एक्स इंसान है जिसकी डिपेंडेंसी नहीं है उस प्रोजेक्ट पे, हम्म। तो उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी प्रोजेक्ट पे उस बंदे की नीड ही नहीं है प्रोजेक्ट पे ना। तो बंदा काम करे तो बढ़िया, नहीं करे तो भी बढ़िया। ओके, सो मेनली आपके यही कहने का मतलब है। और सो बॉस, आपका वहाँ पे रोल क्या है और किस तरह का काम आप करते हो? देख अभी तो मैं, एक हमारे रोल का नाम है ग्रेजुएट एनालिस्ट, ओके। बट काइंड बेसिकली है हम सॉफ्टवेयर डेवलपर ही। हम्म। हम्म। तो द रोल देख मैं जिस टीम के अंदर हूँ मेरी टीम का नाम है IRDS। हम्म। तो वी आर वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है, आई कांट टेल यू द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑब्वियसली, बट हम कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं। हम्म। तो माय रोल इसकी मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर पे हर मंथ के एंड पे रिलीज होते हैं, रिलीज इज लाइक अपडेट होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। हम्म। तो सॉफ्टवेयर पे जो अपडेट्स हैं हम वो डेवलपर से काम करते हैं। हम्म। अब मान ले क्लाइंट को कोई नया फीचर चाहिए, हम्म। कि मान ले उसको डेटा चाहिए स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, कि वो हमको बोलेगा कि मेरे को डेटा चाहिए या मेरे को डेटा के अंदर की ये स्पेसिफिक चीज अलग से चाहिए। ओके। तो हम डेवलपर उस चीज पर काम करेंगे कि वो डेटा का अलग से चीज अलग से दिखे, वो एक अलग चीज। तो वो हमारा काम है वो चीज एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना। ओके, तो मतलब बेसिकली आपका काम कोई डेटा के ऊपर एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली फिर रिजल्ट देना, इस तरह से बस? बेसिकली हम लोग काम तो सॉफ्टवेयर पे करते होते हैं, ओके।
अब वो सॉफ्टवेयर डेटा हैंडल कर रहा है, हम्म, डेटा उसके अंदर आ रहा है, वो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर कुछ डेटा पे काम कर रहा है, एंड फिर वो सॉफ्टवेयर पब्लिश कर रहा है उस डेटा को एक जगह पे। हम्म, हम डेटा पे काम नहीं कर रहे, डेटा बस, डेटा इज लाइक वाटर फ्लोइंग इनटू अ पाइपलाइन, ठीक है। हम बस पाइप पे काम कर रहे हैं हम्म, कि वो पानी किस तरह से जाएगा। पानी हम्म, तो जाएगा ही, हम हम्म, बस पाइप पे काम कर रहे हैं कि वो पानी का फ्लो कैसे चेंज करेगा। ओके। तो मतलब बेसिकली आपका वर्क इस तरह से है कि एक टास्क है, प्री डिफाइंड टास्क, तो उसको कितने और एफिशिएंट वे में या फिर किस और इजीएस्ट वे में सोल्व किया जा सकता है। यस। ओके। एंड बॉस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलेज लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ देख, अकॉर्डिंग डिफरेंसेस तो बहुत हैं भाई, मतलब तेरे को पूछना चाहिए व्हाट इज द सिमिलैरिटी, क्योंकि सिमिलैरिटी कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। मतलब ऐसा है कि यार कॉर्पोरेट इज टोटली अ कॉम्पिटिटिव कल्चर, मतलब ठीक है, कॉलेज के अंदर कोई ऐसे तुमको कंपटीशन नहीं देखता हम्म, कि भाई ये मेरा कॉम्पिटिटर है या फिर ये मेरे से आगे निकल जाएगा। हम्म, ऐसा नहीं बोलूंगा कॉर्पोरेट के अंदर ही पूरा कॉम्पिटिटिव कल्चर है, बट एक हम्म, दिमाग में तो होता है ना कि आई हैव टू गेट बेटर देन दिस पर्सन, या फिर इस बंदे की कोडिंग अच्छी है तो मेरे से ऊपर निकलना है। तो हम्म, कॉलेज के अंदर एक बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है, हम्म, एवरीवन वांट्स टू हेल्प एवरीवन, की मजे बहुत करने हैं। हम्म, लाइक कॉलेज में एम इज नॉट टू गेट अहेड ऑफ अदर पीपल, इट्स टू एंजॉय दिस करंट मोमेंट। हम्म, दोस्त बनाने हैं, क्लब्स में मस्ती करनी है, घूमना है आसपास, क्लासेस लगा लिए नहीं बंद कर लिए। हम्म। ऑफिस में नहीं है, सॉफ्टवेयर में पता है कि तुमको रोज आना ही पड़ेगा, तुम भंग तो कर नहीं सकते। 75 का क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया तो है ही नहीं यहाँ पे, तुमको लिमिटेड लीव्स मिलती हैं साल की, जैसे यूटिलाइज करनी है करो। हम्म, मजे करने के लिए तो है नहीं, तुमको काम तुमको दे रखा है, डेडलाइन है, यू हैव टू अचीव दैट डेडलाइन। ओके, सो एक डेडलाइन से पहले अगर नहीं करा तो फिर आपके कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ इस तरह से होता है बस ऐसा सिस्टम। है कि हम तो ग्रेजुएट है, तो हमारा मतलब हमको ऐसा टास्क दे ही नहीं रहे लोग कि हम्म, जिससे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट हो। हम्म, ठीक है, तो बट हाँ, जो लोग उस पोजीशन में हैं कि हम्म, जो काम नहीं करेंगे और प्रोजेक्ट इफेक्ट होगा, हम्म, उनके ऊपर एक डेडलाइन रहती है कि उनको डिलीवर करना है इस डेडलाइन हम्म। के पहले, एंड अगर नहीं करते तो हाँ उनके दे फेस दैट स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, तो मतलब कॉलेज लाइफ तो फिर भी चिल के उसमें हो सकता है, लेकिन बहुत हाँ, कॉर्पोरेट लाइफ में आपको मेहनत सब कुछ बहुत चीज़ें हो जाती हैं। बहुत चीज़ें हैं। ओके। एंड बस, लाइक यू वर्क एज अ गिग्स फॉर गिग्स स्टूडेंट एम्बेसडर, तो हम्म। ये सही में काम आता है क्या? इसमें आपने वर्क क्या किया था और ये बेनिफिशियल होता है? देख, इट इज लाइक अ वेरी पैसिव जॉब एक्चुअली, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि आई वाज, द थिंग वाज जीएफजी ने जब हम लोग हर कॉलेज को उन्होंने एज अ कैंपस एम्बेसडर लिए थे, हम्म, तो इनिशियली तो हमको बोला था कि यू हैव वी विल डू दिस इवेंट्स इन योर कॉलेज। उन्होंने कमिटमेंट बहुत दी थी स्टार्टिंग में कि हम ये करवाएंगे, बट द थिंग वाज उन्होंने अपने साइड से उतना एफर्ट डाला नहीं। हम्म, एंड इवन आई लाइक मैंने, जब हमारा फर्स्ट इवेंट होने वाला था एक, हम्म, आई अप्रोच्ड सम टीचर्स इन आवर कॉलेज की, मैम ये चीजें हैं एंड कैन आई डू दीज थिंग्स, तो उन्होंने परमिशन दे दी। बट द थिंग वाज आई डिड नॉट गेट द रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम आवर कॉलेज। ओके, तो वहां पे मेरे को फील हुआ कि हमारे कॉलेज के अंदर वो कमी है कोडिंग कल्चर की या एक एंथुजियाज्म की, कि अगर कोई एक बंदा कंडक्ट कराना चाहता है कोई इवेंट, तो लोग इकट्ठे ही नहीं हो रहे, या फिर वो एंथुजियाज्म ही नहीं है कि लोग आके पार्ट बने उस इवेंट का। एंड आई थॉट कि मेरे अंदर इतना तो मेरे अंदर इतना लाइक वो नहीं है कि मैं लोगों को जबरदस्ती इकट्ठा करूं, कि मैं बैठ हम्म, के मार्केटिंग करूं उस चीज की, दोस्तों को बोलूं, इवेंट कराऊं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो द थिंग वाज मैंने एक दो इवेंट के लिए ट्राई किया, हम्म, जनता उतनी नहीं आई, देन आई टोटली डिस्कार्डेड इट, मतलब मैंने बंद कर दिया वो। एंड उनके साइड से इवेंट आते रहे, मैं डालता गया, बट इट वाज लाइक उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मतलब। हम्म। एंड आई वुड से कि इट्स नॉट अ वेरी, क्या बोले, गुड थिंग। गुड थिंग नहीं बोलूंगा, इट इज नॉट अ वेरी कि तुमको हेल्प करेगी, बट ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि तुमको बिल्कुल यूजलेस है। इट्स कि ऐसा कि इंटरव्यू में तुमसे लोग पूछेंगे, तो कि मान ले तेरे इंटरव्यू में लिखा हुआ है, तो पीपल हम्म, विल आस्क यू क्या था, हम्म, एंड यू कैन ऑब्वियसली रैप सम लाइक, यू कैन मैनिपुलेट और सम चेंज सम थिंग्स अराउंड दैट, कि ठीक है तुमने किया एक्स काम, बट तुम उसको बोलो ऐसी तरह में कि सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाए।
डेटा को फेर बदल करके कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे काम आती हैं। यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स काम आते हैं। ओके, सो बस फ्रॉम योर ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस सो फार, तो आपकी ऐसी कौन सी बिगेस्ट लर्निंग है जो आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना चाहोगे? माय बिगेस्ट लर्निंग, यस बस। लर्निंग्स तो बहुत है मेरी यार, ऐसे ना मैं कॉलेज लाइफ के अंदर बहुत कुछ सीखा है ऐसे, बट माय बिगेस्ट लर्निंग इज, आई वुड से कि मेरे लिए बिगेस्ट लर्निंग तो ये है कि टू हैव गुड पीपल अराउंड यू, मतलब ठीक है। always be very cautious of हम्म, what kind of people you are keeping around you। हम्म, क्योंकि बहुत छोटी चीज लगती है यार कि इंसान ना बहुत ही अननोइंगली दोस्त बना लेता है अपने आसपास। कि मान लो कोई फर्स्ट में बंदा मिल गया, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, अब 4 साल इसके साथ कट रहे हैं। अब वो गलत बात नहीं है कि तुम दोस्ती बनाना, बट यू हैव टू रियली चूज पीपल कि तुम किनके साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग या अपने क्लोज सर्कल में ला रहे हो किन लोगों को, ठीक क्योंकि वही लोग आगे जाके तुमको हेल्प करेंगे अगर सही लोग होंगे। जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन या लाइफ में तेरी जो प्रॉब्लम आएगी है। यस बॉस। वही लोग तेरे आगे आके हेल्प करेंगे। एंड अगर तूने गलत लोग चूज किए हम्म, तो तेरे को अच्छा तो छोड़, वो उल्टा डिमोटिवेट करेंगे या फिर तेरे पे जेलस होंगे। हम्म, तो अच्छा होने के जब बजाय तेरे साथ बुरा हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो लाइक ठीक। लाइफ में सबके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। हम्म, तेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम्म, अब मैं तेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, तू मेरी नहीं समझ सकता। यस बॉस। सब सबको डील करना है अपनी प्रॉब्लम के साथ। हम्म, बट एट द एंड ऑफ द डे तेरे पास कुछ लोग हैं, मेरे पास हम्म, कुछ लोग हैं। हम्म, मैं अपनी प्रॉब्लम उन लोगों के पास जाके शेयर कर सकता हूँ और वो मेरी हेल्प करेंगे। तू अपने क्लोज लोगों के पास जाएगा, वो तेरी प्रॉब्लम समझेंगे और तेरे से हेल्प करेंगे। डेफिनेटली। तो इट्स, मेरी तो लर्निंग यही है मेन कि लोग ऐसे चुनो जो तुम्हारे पास लाइफ में हर पॉइंट पे साथ खड़े रहें, अप्स एंड डाउन्स। जिनके साथ फन भी हो, सब कुछ हो, और जो हमेशा साथ भी दे कि आगे मुझे लाइफ में कोई भी जरूरत पड़ेगी, कुछ शेयर करना हो, तो यही वो लोग हैं जिनके साथ मैं शेयर करूंगा। बिल्कुल। ओके, सो बॉस उन्होंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ ओवरऑल किन किन चीज़ों में सपोर्ट किया था? यार देख, हम्म, एक तो कम्युनिकेशन तो था ही, बट ठीक एक है। होता है ना कि भाई लाइफ में मान ले हार्ट ब्रेक आता है, हम्म, कि भाई कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हो गई, या ओके। फिर मान ले इंटरव्यू रिजेक्शन हो गया, हम्म, कि भाई कंपनी से रिजेक्ट होके इंसान टूट जाता है। खुद का, हम्म, खुद के अंदर सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। हम्म, तो उस टाइम पे वो लोग आके समझाते हैं कि भाई हो जाएगा सब, हम्म, तूने इतनी मेहनत करी है, तूने इतने एफर्ट डाले हैं, कोई बात नहीं। एंड उस टाइम पे चाहिए रहता है भाई कि तुमको कोई आके बोले वो चीज, हम्म, क्योंकि तुम खुद पे खुद की बातों पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि तुमको तो फर्स्ट हैंड रिजेक्शन मिला है। तुम्हारी बातें तो बंदे, सामने वाले बंदे ने मुकार दी ना, मतलब। तो उस टाइम पे तुमको लोग चाहिए रहते हैं कि, मैं जब वेल्स फार्गो के सेकंड राउंड में रिजेक्ट हुआ था, हम्म, तो मैं लिटरल बहुत टूट गया था, क्योंकि इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम कंपनीज वेल्स फार्गो। बट फिर उस टाइम मेरे सब दोस्त आए, सबने आके समझाया, खाने पीने का लाए, बस लाइक उस टाइम पे आई फेल्ट कि भाई जो मैंने फर्स्ट ईयर में दोस्त बनाए, उसकी तब मेरे को वैल्यू समझ में आई कि हाँ भाई सही, मैंने लाइफ में बहुत अच्छा डिसीजन लिया मैंने। मतलब तो मेकिंग गुड। इमोशनल सपोर्ट दिया दोस्तों ने, हम्म, मोटिवेट बहुत किया, कम्युनिकेशन तो था ही। हम्म, एंड भाई मान ले तो तेरी कुछ बुरी आदतें हैं, तो बुरी आदतें बोलते हैं कि भाई आयुष ये मत किया कर, अच्छा नहीं लगता मेरे को। हम्म, तो वो एक चीज होती है कि भाई बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई तुम्हारी हाँ में हाँ मिला देते हैं, कि yes, उत्तम, हम्म, कि भाई मान ले तेरे में खराब चीज भी है, कोई बात नहीं भाई, उत्तम को बोलेंगे नहीं, तो नहीं तो बुरा लग जाएगा, या फिर उत्तम को क्यों बोले, उत्तम को तो नहीं हमको आगे बढ़ने देना। रियलिटी चेक। तो भाई जो बंदा तुमको रियलिटी चेक दे रहा है ना, वही है असली दोस्त। की भाई डिस्पाइट कि इसको बुरा लगे, नहीं पड़ता फर्क मेरे को, मैं चाहता हूँ ये बंदा आगे निकले, मेरे साथ आगे निकले, ये तो मैं तो अच्छा चाहता हूँ इसके लिए। तो वो मेरे दोस्तों ने मेरे लिए किया सब कुछ। ये धीरे धीरे पता चलता है कि जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ साथ। ओके, सो बस पूछना तो नहीं चाहिए, बट डू यू plan to continue your current job or do you have any other plans in future? देख हाँ। मेरे राइट नाउ तो देख, मेरा तो एम ही है कि
gather as much knowledge as possible in my current job, हम्म, and I don't have any kind of planning. ठीक है, हम्म, I have some plans, but right now कि ठीक है, those हम्म, are in a very far future. हम्म, बट अभी मेरा करंट जो है ना शॉर्ट टर्म प्लान है, वो यही है कि जिस जॉब में मैं हूँ, हम्म, मैं वो पहले समझ लूँ कि उस जॉब में एक कंपनी क्या कर रही है, मेरा रोल क्या करता है, हम्म, कि मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि भाई एक चीज समझी नहीं दूसरी चीज पे भाग गए, दूसरी चीज समझी नहीं तीसरी पे भाग गए। हम्म, तो मैं जब यहाँ पे, मेरा गोल ये है कि मैं पूरा समझ जाऊँ कि पूरा कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे यहाँ पे चीजें वर्क कर रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं। हम्म, उसके बाद इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा इस चीज के अंदर। एंड जब वो चीज पूरी हो जाएगी देन आई विल सी कि वेयर द लाइफ टेक्स मी, बट अभी तो मेरा गोल यही है। अभी तक शॉर्ट टर्म गोल या फिर मतलब जो गोल्स है वो अभी कंपनीज में। यस। ओके, सो बस हमारा पॉडकास्ट यहीं पे एंड होता है। तो आपका कोई क्वेश्चन है जो लगा कि ये क्वेश्चन होना चाहिए था लेकिन ये पूछा नहीं गया? नहीं, तूने मोस्टली सारा कवर कर लिया, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कुछ तूने लीव किया। हम्म, बट हाँ, मैं जितना मेरे को बोलना था मैंने मेन सब बोल दिया कि वीकनेसेस क्या है। लाइक मेरा तो बस यही रहता है कॉलेज के अंदर, हम्म, मजे करो। हम्म, लाइक मेरी एक प्रॉब्लम रहती है कि ना, मेरा मैं स्ट्रेस बहुत लेता लेता था। हम्म, लाइक मेरी छोटे से आदत है कि मैं ऐसी हम्म, ऐसी चीजों में स्ट्रेस निकाल लेता था कि हम्म, जिसमें इंसान सोचेगा कि भाई इसमें कैसे स्ट्रेस ले लिया तूने। ओके, तो अब ये अच्छी चीज भी है कि भाई मैंने स्ट्रेस लिया है इतना, तो हम्म, ठीक है, मेरी पढ़ाई अच्छी गई और मैंने हर चीज निकाल लिया अच्छे से। हम्म, बट इसका एक ये ड्रॉबैक भी है कि तुम लाइफ में फिर एंजॉय करना भूल जाते हो अगर तुम हर चीज का स्ट्रेस ले रहे हो। तो उस टाइम पे फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड राज बहुत हेल्प किया, क्योंकि भाई राज ऐसा इंसान था कि उस बंदे ने, उसने हर चीज निकाल ली बिना एक भी स्ट्रेस लिए हुए। डेफिनेटली। तो मैं उसको देख के सोचता था कि यार ये बंदा इस चीज की स्ट्रेस तो लास्ट में बनती है भाई, ये इस हाँ, चीज की स्ट्रेस क्यों नहीं ले रहा। तो उसको देख के मैं चिल हो जाता था कि यार ये नहीं ले रहा तो मैं क्यों लूं। सही है, बेस्ट फ्रेंड। तो उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ठीक है, तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट हो जाएंगी अगर तुम्हारे पास लोग सही हैं। बाकी चलना तो सबको ही सब चलते हैं, मतलब बाकी आसपास अगर आपको सपोर्ट करने के लिए लोग हैं तो डेफिनेटली इट विल। बिल्कुल। ओके, तो बस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।